میرے نہایت ہی قابل احترام عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا۔ اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعے عرض ہو چکا ہے، اور کچھ حصہ انشاءاللہ آج عرض کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اسی واقعہ کو آگے بڑھائیں۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا ہے، اور یہ جو 6 سال تھے یہ صحابہ کرام کے لیے بڑی اذیت کے سال تھے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے انہیں تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آبائی گھر مکہ کی طرف نہ جا سکے۔ کوئی اپنے والدین کو چھوڑ کے آیا تھا، کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا تھا، کسی نے اپنی جائیداد اور مکان مکہ میں چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں مشرکین مکہ نے حالات ایسے بنائے ہوئے تھے کہ کسی مسلمان کو جرأت نہ ہوئی واپس مکہ مکرمہ جانے کی، اور ہجرت کے ان 6 سالوں میں جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، جنگ احد بھی ہو چکی تھی، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، اور مسلمانوں کا بھی جنگ احد میں جانی نقصان ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ وقوع پذیر ہوئی، اور اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، جس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بڑے امن، اطمینان اور سکون کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، پھر بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر جب آپ باہر نکلے آپ کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابیاں آئیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اور یہ سارا معاملہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کو بیان فرمایا، تو صحابہ کرام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مکہ کے راستے ہمارے لیے کھل چکے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نہ مشورہ کیا، اپنی طرف سے انہوں نے عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے احرام وغیرہ باندھے اور عمرے کی نیت سے تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خواب دیکھ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی شاید یہی چیز تھی
کہ یہی وہ وقت ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری فرمائی عمرہ کرنے کی، اور آس پاس کے جو دیہات تھے، قبائل تھے، انہیں بھی پیغام بھجوایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہو چل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے چلنے کی حامی بھری، کچھ منافقین نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ الغرض ذی قعد کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے بغرض عمرہ روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ جب آپ سفر فرمایا کرتے تھے تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو قرآن اندازی کے ذریعے منتخب فرماتے اور اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس سفر میں جو قرہ نکلا وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام کا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، اور صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے کی نیت سے روانگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کو بھی اس چیز کا علم ہو گیا، تو مشرکین مکہ کے بچے بچے نے یہ شور کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، ہم جنگ کریں گے لیکن کسی مسلمان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ یہ ان کی مشاورت ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا، مشرکین مکہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر اس راستے پر بھیج دیا کہ اگر مسلمان یہاں تک آ جائیں، بھلے ان سے جنگ کرنا پڑے جنگ کرنا، لیکن کسی مسلمان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوسوں کو دوڑایا۔ بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے آگے روانہ فرمایا کہ مشرکین مکہ کے حالات دیکھ کر آؤ۔ وہ پہنچے جہاں خالد بن ولید تھے، یہیں سے انہوں نے حالات لیے، اور واپس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا تو بچہ بچہ باہر نکلا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے بتوں کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی مسلمان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کے سامنے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بڑے افسوس کا مقام ہے، مشرکین مکہ کو جنگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی جنگ کا بھوت ان کے سروں سے اترا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مشرکین مکہ کے لیے تو بڑا بہترین موقع تھا کہ وہ خود درمیان سے نکل جاتے، مجھے اور دیگر قبائل عرب کو آزاد چھوڑ دیتے، ہم آپس میں لڑتے، آپس میں جنگ کرتے، اگر دیگر قبائل مجھ پر غالب آ جاتے اور میں مغلوب ہو جاتا تو مشرکین مکہ کی مراد گھر بیٹھے بٹھائے پوری ہو جاتی کہ مجھے شکست ہو گئی، اور اگر میں دیگر قبائل عرب پر غالب آ جاتا
तो फिर भी मुशरिकीन मक्का के पास दो रास्ते होते। अगर वो चाहते वो इस्लाम कबूल कर लेते, अगर वो इस्लाम कबूल ना करते तो जब तक मैं और दीगर कबाइले अरब जंगों में मसरूफ रहते, मुशरिकीन मक्का को वक्त मिल जाता, वो अपनी अफरादी कुव्वत बढ़ा सकते थे, अपनी जंगी तैयारी मजीद कर सकते थे। लेकिन अफसोस है कि इन मुशरिकीन मक्का को कोई चीज समझ नहीं आ रही। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अल्लाह के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा, चाहे मेरी तन्हा गर्दन रह जाए, यानी सब मुझे छोड़कर चले जाएं, मैं फिर भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकल चुके हैं, मक्का के रास्ते में हैं। रास्ते में बिशर बिन सुफियान ने आकर आपको ये इत्तला दी कि अल्लाह के रसूल मुशरिकीन मक्का पूरी कुव्वत के साथ भरपूर मज़ाहमत का इरादा रखती है। तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से मुशावरत फरमाई कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो किसी से लड़ने के लिए नहीं निकले हैं, हम तो उम्रा करने के लिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए निकले हैं। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही हैं मुशरिकीन मक्का की, वो खबरें ये हैं कि वो जंग की तैयारी के साथ निकल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा मांगा कि मुझे ये मशवरा दो, अब हमें क्या करना चाहिए। हम उम्रा की नीयत से निकले हैं, इसी नीयत से आगे चलें या हम भी जंग की नीयत से आगे चलें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने जो नीयत फरमाई है आप अपनी उसी नीयत पर कायम रहें। उम्रे की नीयत से आप सफर फरमाएं। रास्ते में अगर कोई हमें कुछ नहीं कहेगा तो हम किसी की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे, और अगर किसी ने मज़ाहमत की कोशिश की, किसी ने लड़ने की कोशिश की, किसी ने जंग करने की कोशिश की, तो वो फिर हमारी तलवारों की धारों को देख लेगा कि किस तरह फिर हम गर्दनों पे गर्दनें उड़ाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को सुना, आप मुतमईन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अंसार में से कोई खड़ा होकर मुझे मशवरा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तो मुहाजिरीन सहाबा में से थे, तो आपने फरमाया कि अंसार में से कोई मशवरा दे। तो हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप क्या बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? अगर खुदा न खास्ता जंग की नौबत आ गई तो हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था। जब जंग का मौका आया तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया और कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, कि तू और तेरा रब जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। हजरत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे। अगर जंग की नौबत आ गई, वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदिका व मिन खल्फिका, हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से हम आपकी हिफाजत करेंगे और आपके शाना बशाना हम लड़ेंगे। ना आपकी जान पर कोई हर्फ आएगा, ना आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आएगा। आप किस नीयत से निकले हैं उसी नीयत के साथ आप चलें। अगर किसी ने रास्ते में रोकने की कोशिश की तो वो फिर हमारी तलवारों की धारों को देख लेगा कि किस तरह ये तलवारें
गर्दनों पे गर्दनें उड़ाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुम सबकी राय, तुम सबका मशवरा अगर यही है कि हम जिस नीयत से निकले हैं इसी नीयत से हमें सफर जारी रखना चाहिए, तो हम इसी नीयत से सफर को जारी रखते हैं। और अगर किसी ने मज़ाहमत की, जंग की या क़िताल की कोशिश की, तो फिर हम इसमें हक बजानिब होंगे कि हम अपने दिफा में अपनी तलवार इस्तेमाल करें, लेकिन अज खुद हम किसी को मैली आंख से नहीं देखेंगे। सफर शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमाते फरमाते मक्का मुकर्रमा के उस मकाम तक पहुंच गए जहां खालिद बिन वलीद ने रास्ता रोका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, नमाज का वक्त हुआ। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आज़ान दी, ज़ुहर की नमाज पढ़ी गई, तो खालिद बिन वलीद का लश्कर खड़े होकर मुसलमानों को देखता रहा कि मुसलमान कभी रुकू में जाते हैं, कभी सजदे में जाते हैं, फिर उठकर खड़े हो जाते हैं, कभी अत्तहियात में बैठ जाते हैं। तो जब नमाज खत्म हुई तो खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा कि हमसे बड़ी कोताही हो गई, बड़ी गलती हुई है कि हम नमाज की हालत में मुसलमानों पर हमला कर देते और यकबारगी हम इनका सफाया कर देते। तो किसी मुशरिक ने कहा खालिद बिन वलीद से, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद ये फिर नमाज के लिए खड़े होंगे तो फिर हम इन पर हमला कर देंगे। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा, जब ये दोबारा नमाज के लिए खड़े होंगे फिर हम उनको खत्म करेंगे। ये खालिद बिन वलीद का पूरा लश्कर बमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को खत्म करने पर तुला हुआ था, लेकिन वो रब है जिसने कदम कदम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और आपके सहाबा की हिफाजत फरमाई। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फौरन जिब्राईल को भेजा कि जाओ सलातुल खौफ का हुक्म लेकर जाओ, यानी वो नमाज जो जंग की हालत में पढ़ी जाती है, और उस नमाज की सूरत ये होती है कि आधा लश्कर वो दुश्मन की तरफ मुतवज्जे रहता है, आधा लश्कर नमाज पढ़ता है, और इस तरीके से ये अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। जब असर की नमाज इस तरह मुकम्मल की गई तो खालिद बिन वलीद हाथ मलते रह गए कि जो मौका हमारे पास था वो हमने जाया कर दिया। अब तो मुसलमान बड़े मुहतात होकर अपने रब की इबादत कर रहे हैं कि हमें भी वो देख रहे हैं और अपने रब की इबादत भी वो कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि यही मकाम है, इसी जगह पर हम पड़ाव डालेंगे, यहीं से आगे का लाए अमल वो तैयार होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, सामने खालिद बिन वलीद का लश्कर है तो हमें कहाँ पड़ाव डालना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें लश्कर से हटकर पड़ाव डालना चाहिए। चुनांचे सहाबा किराम वहां तशरीफ ले गए और वहां जाकर सहाबा किराम ने पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंटनी पर सवार थे, इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु की ऊंटनी का पांव फिसल गया और वो बैठ गई। सहाबा ने बड़ी कोशिश की उठाने की, वो न उठी। तो किसी सहाबी ने की जुबान से निकल गया कि लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बिगड़ गई है, जो किसी के उठाने से उठती नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना ये बिगड़ी है, ना इसकी ये आदत है, इसे उस रब ने रोक दिया जिसने हाथियों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था, और ये कुदरत की तरफ से इशारा था कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि ख्वाब में मुझे जो कुछ दिखाया गया, ख्वाब में जो कुछ दिखाया गया उसके पूरा होने का ये वक्त नहीं है, वो कोई और वक्त है जिसमें हम अमन के साथ, सलामती के साथ, सुकून के साथ मक्का में हम दाखिल होंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया पड़ाव डालो। सहाबा ने पड़ाव डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया गया।
1400 सहाबा किराम का मजमा, ये बड़ा मजमा है और बड़ा लश्कर है, जिनके पास ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, खुद भी हैं, और पड़ाव भी ऐसी जगह पर आकर डाला कि पानी नाम की कोई चीज नहीं है। एक कुआं और उसमें भी पानी उसकी तह में, इसके अलावा और कोई पानी का जरिया नहीं है। और पानी के जितने भी चश्मे थे उन सब पे खालिद बिन वलीद और उसके लश्करियों ने वो कब्जा किया हुआ था। तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ना हमारे पास पीने के लिए पानी है, ना हमारे पास वुजू करने के लिए पानी है, ऐसी सूरत में कैसे हम यहाँ रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कितना पानी है? तो एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, पानी की एक छागल है। छागल कहा जाता है चमड़े के उस बर्तन को या उस मश्क को, जिसमें आज से कुछ अरसा पहले मैंने भी ये चीज देखी है कि दुम्बे और बकरी की जो खाल होती है, इसकी मश्क बनाई जाती थी और उसमें पानी डाला जाता था और छोटे छोटे मशकीजे उसी के बनाए जाते थे। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो एक छागल पानी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाओ। वो छागल पानी की लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला रखा गया। आपने फरमाया कि वो पानी उस प्याले के अंदर डाल दो। तो उस सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो पानी उसमें डाला तो बमुश्किल वो 2-3 गिलास पानी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया। हर काम पर सहाबा किराम की ड्यूटियां लगी हुई थी। एक सहाबी के जिम्मे ये था कि जितने भी ऊंट थे वो उन ऊंटों को चराया करते थे। वो आपने फरमाया कि उसे बुलाओ। चुनांचे वो हाजिर खिदमत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तीर मेरे तुरकश में से निकाल कर लाओ। चुनांचे वो सहाबी एक तीर लाए। आपने फरमाया, इसे पकड़ो। उस सहाबी ने उस तीर को पकड़ा और वो जो प्याले में पानी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घूंट भरा, कुल्ली की, और वो पानी उसी प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिया। और उस सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वो जो कुआं है उसके अंदर उतर जाओ, नीचे जाकर ये तीर उस कुएं के अंदर गाड़ देना, और गाड़ने के बाद ये जो पानी का प्याला है ये उसके अंदर उंडेल देना। अल्लाह की जात से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला पानी से हमें फारिग कर देंगे, यानी वाफिर पानी अल्लाह हमें अता फरमाएंगे। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने ऐसे ही किया। वो तीर लिया और कुएं के अंदर उतरा और उतरकर मैंने उसे गाड़ा, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली मुबारक किया हुआ पानी, वो पानी मैंने उसके अंदर डाला तो पानी इस तरह जोश मार कर ऊपर आने लगा जिस तरह हंडिया के अंदर पानी जोश मारता है। मेरे बाहर निकलते निकलते मेरी गर्दन तक पानी आ गया, और मैं जब बाहर निकला तो पानी मुंडेर से बाहर निकलने लगा। और 1400 सहाबा किराम ने अपनी सारी जरूरियात को पूरा किया। 1400 सहाबा किराम ने पानी पिया, उनके जानवरों ने पानी पिया, बर्तनों के अंदर पानी भरा, और अपनी हर किस्म की जरूरत को जब हम पूरा कर चुके तो पानी उसी तरीके से मुंडेर से बाहर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जिस रब ने कदम कदम पर मेरी हिफाजत की है वो रब हमें भूखा और प्यासा नहीं मरने देगा। ये पानी के खजाने भी उसी रब के कब्ज़े कुदरत में हैं, और भूख मिटाने के खजाने भी उसी रब के कब्ज़े कुदरत में हैं। वो रब जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, अपने खजानों से हमें अता करेगा। खिलाएगा भी वो रब और पिलाएगा भी वो रब। चुनाचे सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारी सारी जरूरियात पानी की जो मुताल्लिक थी वो इसी मकाम पर पूरी होंगी। उलमाए किराम ने लिखे है कि जब खालिद बिन वलीद के लश्कर ने देखा कि पानी की जगहों पर हमने कब्जा किया और पानी हमारे लिए कम पड़ गया, और मुसलमानों ने जिस जगह पर जाकर पड़ाव डाला वहां एक ही कुआं और चश्मा था जो बिल्कुल सूखने के करीब था, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान पानी से मुताल्लिक अपनी हर किस्म की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आखिर इसका माजरा क्या है, इसकी वजह क्या है? और उलमाए किराम ने लिखे है कि यहीं से
मुशरिकीन मक्का पर अल्लाह ने खौफ को तारी कर दिया और मुशरिकीन मक्का घबरा गए कि ये क्या मुआमला है कि एक चीज बिल्कुल उसका वजूद ही नहीं है और ये मुसलमान उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज इनके पास है कि वो चीज इन्हें मुयस्सर और मुहैया हो। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वफूद के जरिए से बातचीत करना शुरू की, इसलिए कि वो भी उनकी चाहत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से चले जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ख्वाहिश लड़ने की नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस उम्रा करने, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने और दीदार करने के लिए आ रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का को ये मशवरा दिया गया कि बेहतर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकाला जाए। चुनांचे मुशरिकीन मक्का ने अपनी तरफ से सबसे पहले बुदैल बिन वर्का एक शख्स से, एक बड़े सरदार से, ये बाद में मुसलमान हो गए थे, बुदैल बिन वर्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाकर बातचीत करें, गुफ्तगू करें और बातचीत के जरिए से इस मसले का हल निकालें। बुदैल बिन वर्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, आप अपनी ही कौम के खिलाफ निकल खड़े हुए, अपनी ही कौम के खिलाफ आप तलवार उठाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किसने कह दिया हम लड़ने के लिए आए हैं? हम में से तो कोई लड़ने के लिए नहीं आया, तुम देख नहीं रहे हर सहाबी ने इहराम बांधा हुआ है, तलवार के अलावा किसी सहाबी के पास कोई असला नहीं है। हम तो बस अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए और उम्रा करने के लिए आए हैं, ना हमारी जंग की कोई नीयत है, ना हमारी लड़ाई की कोई नीयत है। और सुनो, मुशरिकीन मक्का को जंगों ने तबाह करके रख दिया है, अब भी मुशरिकीन मक्का के पास वक्त है और मौका है, वो पीछे हट जाएं, मुझे और दीगर कबाइल को आजाद कर दें, मैं और दीगर कबाइल आपस में हम लड़ेंगे। अगर मैं मगलूब हो जाता हूं, मैं हार जाता हूं, तो मुशरिकीन मक्का की मुराद घर बैठे बिठाए पूरी हो जाएगी, और अगर मैं फतह याब हो जाता हूं तो फिर भी मुशरिकीन मक्का के पास दो रास्ते हैं, चाहे तो इस्लाम कबूल कर लें, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं छोड़ दें, अपनी तैयारी करें जंग की, जंग करने के बाद फिर मेरे मुकाबले पर आए। बुदैल बिन वर्का ने कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये बात मुशरिकीन मक्का मानेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये पैगाम मुशरिकीन मक्का को जाकर दे दो कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए। हाँ, अगर किसी ने मज़ाहमत की, किसी ने रास्ता रोकने की कोशिश की, तो ये चीज जहन में रखें, हमारी तलवारें कुंद नहीं हुई, अब भी हमारी तलवारों की धारें तेज हैं, हम गर्दनों पे गर्दनें उड़ाकर रख देंगे अगर किसी ने मुसलमानों से टकराने की कोशिश की। बुदैल बिन वर्का गए और जाकर मुशरिकीन मक्का से कहा कि मैं मुलाकात करके आया हूं, जो कुछ उन्होंने कहा है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो मुशरिकीन मक्का के बारे में लिखा है कि इनकी जो नई नस्ल थी, नौजवान नस्ल, उसका खून जो है बड़ा जोश मार रहा था। उस नई नस्ल ने बुदैल बिन वर्का से कहा कि आप जाएं, अपना काम करें, हम आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, बस हमारा एक ही पैगाम है कि हम किसी मुसलमान को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। बुदैल बिन वर्का ने कहा, मेरी बात तो सुनो, बात सुनने में क्या हर्ज है। उर्वा बिन मसऊद एक शख्स थे, ये भी आगे चल के मुसलमान हो गए, और उर्वा बिन मसऊद ये बड़े सरदार किस्म के आदमी थे। जब ये इस्लाम लाए, जमाना इस्लाम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बड़ी अहमियत और बड़ा वकाम दिया, हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। उर्वा बिन मसऊद ने कहा बुदैल बिन वर्का से कि आप मुझे बताएं क्या बात हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था बुदैल बिन वर्का के पास, वो उर्वा बिन मसूद को बताया गया। तो उर्वा बिन मसूद ने कहा कि ये कोई गलत बात नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि मुशरिकीन मक्का पीछे हट जाएं और दीगर कबाइल अरब जाने और मुसलमान जाने। इसमें क्या कबाहत है? इसमें
मुशरिकीन मक्का का ही फायदा है। लेकिन जो नई नस्ल थी वो बिगड़ गई, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां से हर हालत में मुसलमानों को वापस जाना होगा। तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा चलो ऐसा है, फिर दूसरी दफा मैं चला जाता हूं, मैं जाके बात करता हूं, हो सकता है मेरी बात उनकी समझ में आ जाए। चुनांचे दूसरा वफद उर्वा बिन मसऊद की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। और जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम में कैसे बैठा करते थे। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दाएं बाएं सहाबा किराम बैठा करते थे, और पीछे 2-3 सहाबी वो हर दम आपकी हिफाजत के लिए तलवारें निकाल कर खड़े हुआ करते थे। ये उर्वा बिन मसऊद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कैफियत में बैठे हुए थे। आपके इर्द गिर्द सहाबा किराम का जम्मे गफीर, और पीछे जो है 2-3 सहाबी वो तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खड़े हुए। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि ये हमने क्या सुना है कि आप अपनी कौम के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, आप अपनी कौम के खिलाफ तलवार लेकर निकल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किसने कह दिया कि हम जंग करने के लिए आए हैं? हम तो उम्रा करने के लिए आए हैं, अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए आए हैं, और अल्लाह के घर की जियारत करने के बाद हम यहां से चले जाएंगे, हमारा रास्ता छोड़ दिया जाए और अल्लाह के घर का दीदार करने दिया जाए। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का किस तैयारी के साथ निकले हुए हैं। उनके पास जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, नौज़ायदा बच्चे भी उनके साथ हैं। वो माएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी उस लश्कर के अंदर निकले हुए हैं, और हर किसी का कहना यह है कि हम किसी भी हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, यहीं से उन्हें वापस चलना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ये क्यों निकले हैं, ये लोग हम जंग करने के लिए तो नहीं आए, हम तो सुकून के साथ उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद वापस चले जाएंगे। तो उर्वा बिन मसऊद ने एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की जिसका सहाबा किराम ने फौरन नोटिस लिया। उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि मुशरिकीन मक्का बड़ी तैयारी के साथ निकले हैं, और ये आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग हैं, रिवायत के जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा कि उर्वा बिन मसऊद ने कितना हद तक अमेज लफ्ज इस्तेमाल किया। बस उसके कहने का मकसद ये था कि ये तो जलील किस्म के और रजील किस्म के लोग हैं, ये तो किसी भी वक्त आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन खड़े हुए और कहा बदबख्त, तो हमें कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे, जब वक्त आएगा तो देखेगा हमारा खून पहले गिरे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर चले जाएंगे। और इसी तरह उर्वा ने जब देखा कि ये मुआमला बड़ा उलट हो रहा है तो उर्वा ने अपना हाथ बढ़ाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को पकड़ने के लिए। जिस तरह किसी की मिन्नत की जाती है, समाजत की जाती है, दाढ़ी पर हाथ लगाया जाता है कि मैं आपको आपकी दाढ़ी का वास्ता देता हूं, आपके रब का वास्ता देता हूं कि आप यहां से वापस चले जाएं। अभी उर्वा बिन मसूद ने हाथ बढ़ाया ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे। उन्होंने फौरन तलवार का दस्ता उर्वा बिन मसूद के हाथ पर मारा और कहा बदबख्त, अपने हाथ को पीछे कर, किसी मुशरिक का हाथ नबी की दाढ़ी को नहीं लग सकता है जब तक कि हम जिंदा हैं। किसी पलीद इंसान का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को नहीं लग सकता है जब तक कि हम जिंदा हैं। उर्वा बिन मसऊद का सारा जोश यूं बैठा जैसे पानी की झाग जो है बैठ जाती है। और इसी दौरान उर्वा बिन मसऊद ने सहाबा किराम के हालात का मुशाहिदा किया, और हालात का मुशाहिदा करने के बाद उर्वा बिन मसऊद जब वापस मुशरिकीन मक्का के पास आया तो मुशरिकीन मक्का के सरदारों से उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि तुम मुझे जानते हो, मैं एक सरदार किस्म का आदमी हूं, मैं रईस किस्म का आदमी हूं, मेरी सारी जिंदगी
सफरों में गुजरी है। मैं कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नज्जाशी के दरबार में गया। खुदा की कसम मैंने वो वहां नहीं देखा जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां देखा। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसी कौन सी अजीब बात देख ली जो तुम्हें कैसर के दरबार में भी नजर ना आई, किसरा के दरबार में भी नजर ना आई, नज्जाशी के दरबार में भी नजर ना आई? ऐसी कौन सी अनहोनी तुमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में? तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा, मैंने जो जानिसारी, जो वफादारी मोहम्मद के साथियों में देखी है, न किसरा के साथियों में वो है, न कैसर के साथियों में, न नज्जाशी के साथियों में है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाक का रेशा निकाल कर कहीं फेंकते हैं, वो रेशा जमीन पर नहीं पड़ता है, वो किसी न किसी सहाबी के हाथ पर जाता है और वो सहाबी उसे अपने बदन के किसी न किसी हिस्से पर मल कर अपने लिए सआदत तस्वुर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जमीन पर थूक फेंकते हैं, वो थूक जमीन पर नहीं जाता है, वो किसी न किसी सहाबी के हाथ पर पड़ता है और वो अपने जिस्म पर मल लेता है और अपने लिए इसे सआदत समझता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जब वुजू करते हैं, वुजू के पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिरता है, सहाबा लपक कर उस पानी को लेते हैं और उसे अपने बदन के ऊपर मल लेते हैं। मैंने ऐसे जानिसार, वफा शिआर और लड़ने वाले, मरने वाले, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, प्यार करने वाले कोई साथी मैंने आज तक किसी बादशाह का नहीं देखा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख कर आ रहा हूं। और तुम उनसे लड़ने की बात कर रहे हो, तुम उनसे लड़ने का इरादा कर रहे हो। मैंने तो वो हालत देखी है, खुदा की कसम, अगर वो तुम में से किसी पर थूक दे, तुम वैसे ही मौत के मुंह में चले जाओगे। मैं तो वो चीजें देख कर आया हूं। तो मुशरिकीन मक्का के सरदार, नौजवान वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यह बुढ़ा पागल हो गया, इसकी कोई बात सुनने के काबिल नहीं है। उर्वा बिन मसूद ने कहा, अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने साथियों को जो लेकर आया हूं, तुम्हारे लश्कर की तादाद को जो मैंने बढ़ाया है, मैं अपने साथियों को वापस ले जाऊंगा। चुनांचे उर्वा बिन मसूद अपने साथियों को लेकर अलग हो गए। बुदैल बिन वर्का की बात को ना सुना गया। बुदैल बिन वर्का भी अपने साथियों को लेकर अलग हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुशरिकीन मक्का की कुव्वत वो कमजोर हो रही थी, उनकी अफरादी कुव्वत कम हो रही थी और अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर ऐसा निजाम बनाया कि मुशरिकीन मक्का के दिलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब बैठता गया। दो वफद आए, कोई बात ना बनी, तो मुशरिकीन मक्का ने तीसरा वफद जलीस बिन अलकमा के साथ आप वसल्लम के पास भेजा। और ये जो तीसरा वफद गया, इनके मौक़िफ़ में कुछ नरमी थी। इन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इस वक्त हमारी इज्जत का सवाल है, अगर कोई मुसलमान मक्का में दाखिल हो जाता है हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए हम इस चीज पर आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं कि इस साल तो आप वापस चले जाएं, इस साल तो हम किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। हाँ, आइंदा साल आप आएं और उम्रा करें, उम्रा करने के बाद आप वापस चले जाएं, इस चीज पर आप हमारे साथ सुलह कर लें। जलीस बिन अलकमा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से इनको आते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि लगता है अब ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा, लगता है कि अब मसला हल हो जाएगा। जलीस बिन अलकमा आए और आकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और मुशरिकीन मक्का का पैगाम पहुंचाया कि बात यह है कि इस साल आप वापस चले जाएं, इस साल तो हम किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, आइंदा साल आप आएं और आइंदा साल भी हमारी शराइत पर आपको आना होगा और आइंदा साल आकर आप उम्रा करें और उम्रा करने के बाद आप वापस चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। 3-4 वफद मुशरिकीन मक्का के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि हम भी अपनी तरफ से हुज्जत को पूरा करते हैं, हम भी अपनी तरफ से एक कासिद मुशरिकीन मक्का के पास भेजते हैं और उन्हें ये पैगाम पहुंचाते हैं कि ये जो तुम्हारे जहन में गलत फहमी है कि मुसलमान लड़ने के लिए आए हैं,
یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے اور سکون کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، کسی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اتمام حجت کے لیے یہ بہترین ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کسی کو بھیجیں۔ اب معاملہ یہاں آ کر اٹک گیا کہ کس کو بھیجا جائے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عمر تم تیار ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں کہ میری تلوار پہلے نکلتی ہے، بات بعد میں کرتا ہوں، آپ معاملہ سلجھانے کے لیے بھیجیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بگڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بہترین شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ انہیں بھیجیں، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کس کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی کو جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، وہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں، نرم طبیعت کے ہیں، معاملہ سلجھ جائے گا، آپ انہی کو بھیجیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، مشرکین مکہ نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ کسی مسلمان کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ کیسے داخل ہوئے اور مشرکین مکہ سے ان کی کیا بات چیت ہوئی، انشاءاللہ بشرط زندگی اس سلسلے کو آئندہ جمعے یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔